हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्षा। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, द चैप्टर्स नेम इज ट्रायंगल्स। आई एम रेफरिंग द बुक क्लास 10th NCERT and this chapter is chapter number, I think this is 6. Yes, I am referring to the chapter number 6 from NCERT class 10. Let's start the chapter. So before we start off with the chapter, let's understand what triangles basically are and what are we going to do in this video. जब हमने पीछे के सारे आपके चैप्टर्स पढ़े, सो वी वर जस्ट लर्निंग अबाउट algebra में we studied about the Pythagorean theorem, we studied about the quadratic equations, we studied about the linear equations. Now moving on to triangles, why am I mentioning the previous chapters is that everything in mathematics will be connected. As in when you flow on with the next set of chapters, everything will be connected. Let's understand how. बट उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर. नाउ आई विल ड्रॉ 3 सेट्स ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे एंड देन आई विल लीव इट अप टू यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग. यहाँ पे मैंने 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, राइट, 1, 2 एंड 3. Okay, now what am I saying and what are the denotions? What are the denotions that यहाँ पे मैंने जो बनाए हैं? First triangle, यहाँ पे by the arrow I am saying that all sides are equal, right? Which means all angles are also equal. So if I define this triangle as angle A, angle B, angle C is equals to whatever. So इस केस में होगा 60. Why? Because the sum of angles in a particular triangle, in any triangle, is equals to always 180. Right? तो अगर तीनों angles equal हैं, then it has to be 60. Right? All sides are equal, all angles are equal. What is the name of this triangle? Obviously, name काफी simple है, and equilateral triangle. Right? नाम सिंपल इसलिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेटरल मीन्स ऑल द लाइन्स सेम, इक्वी मीन्स एंगल्स ऑल द सेम, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में क्या है? 1, 2 and 3, मतलब तीनों साइड्स डिफरेंट है. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस? इसमें आपके कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, आपके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, एंड सच अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल. नो साइड्स इक्वल, no angles equal, right? लास्ट वाला ट्राइंगल आपका कौन सा है? 1, 2 and 3, जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड इज नॉट इक्वल. तो हम इसमें क्या पता लगाते हैं कि 2 साइड्स के एंगल्स भी इक्वल होंगे, थर्ड साइड वाला नहीं होगा. ओके, हम ये फिगर आउट कैसे करते हैं कि कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? सबसे पहले आपका जो भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ऑलवेज द 2 साइड्स व्हिच आर इक्वल टू ईच अदर, वो जिस भी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक पॉइंट इन टाइम पे, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. व्हेन आई से इंटरसेक्शन, व्हाट डज दैट मीन? इफ यू एक्सटेंड दीज लाइंस, ये लाइंस कहीं इंफिनिटी में जा रही हैं, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, which is A, B and C, right? Now this A is basically your one angle. सिर्फ ये वाला जो आपका इंटरसेक्शन का एंगल होगा, this will be different. Rest of the 2 angles will be equal to each other. That is the logic of a isosceles triangle. Right? Now moving ahead. 2 sides are equal. इसकी भी प्रॉपर्टीज हम लिख देते हैं. 2 sides equal and 2 angles equal. Right? These are the 3 types of triangles. Now let's understand what is the 4th type of a triangle. Let's understand that. Now what is the 4th type of a triangle and why is it different? Or what makes it so different that it is not classified under the 3 major types of triangles? The point is that आपका जो चौथा triangle है, that basically is a right angle triangle. Now when I say a right angle triangle, what I mean is any 2 lines
intersecting at a point such that they drop a perpendicular on the line is called a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये केस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, वन एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, व्हिच मींस दैट 180 में से 90 गया तो ओनली 40 रेस्ट ऑफ द एंगल्स का सम विल बी 90 डिग्री. पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स कैन बी 45 एंड 45, which means that the rest of the two angles are equal, which means that this can qualify as a isosceles triangle, right? Which means that ये side और ये side equal और ये side different, which means that this right angle triangle can classify as a isosceles triangle. बट क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट. व्हाई? बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, विच आर ऑलवेज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और उसका सम हमेशा 180 आएगा. क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर पे ही आपका बनेगा, विच मीन्स दैट एक साइड आपका हमेशा 90 डिग्री होना है, विच मीन्स यू आर लेफ्ट विद ओनली 90 डिग्री फॉर द अदर टू एंगल्स टू बी इक्वल टू द सम ऑफ. नाउ this can be isosceles. Now what is the other type of the triangle? The other one is scalene. क्या इसके स्केलिन होने की पॉसिबिलिटीज हैं? Yes, of course हैं. अगर ये 60 होता है और ये 30 होता है, which means that ये स्केलिन में कन्वर्ट हो जाएगा. स्केलिन में कन्वर्ट होने का मतलब है that none of the sides will be equal to each other. All the three sides can be different. Right? So a right angle triangle cannot be an equilateral triangle, but a right angle triangle can be an isosceles triangle and a scalene triangle also. The same will be applicable vice versa as well. Equilateral triangle is one of a kind जहाँ पे आपके सारे angles and sides आपके equal हैं. Vice versa अगर आप देखेंगे तो isosceles triangle and scalene triangle में आपका 90 डिग्री फॉर्म होने के चांसेस हैं, but equilateral triangle में आपके कभी नहीं है. Right? Moving ahead, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज, हाउ डू वी डिफाइन द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड व्हाई इज द राइट एंगल ट्राइंगल सो यूनिक. सो जब हमने अपने ट्राइंगल्स का चैप्टर, जब हमने अपना पाइथागोरस थ्योरम का जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? दैट एनी ट्राइंगल, राइट, एनी ट्राइंगल दैट फॉर्म्स अ 90 डिग्री, उसका जो सम होगा, okay, now say this is a line, right? Now this is a line, this is a line, this is intersecting at A, this is intersecting at B and this is intersecting at B. I am saying कि एक लाइन है D, ठीक है? जो मैं ट्राइंगल कंसिडर कर रही हूँ that is ACD, AC and D, ट्राइंगल ACD. I want to find out कि इसका एरिया कितना होगा, right? Now ये स्केलिंग है, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, आई डोंट नो बिकॉज द साइड्स आर नॉट डिफाइंड. हाउ कैन आई टेक आउट द एरिया फॉर दिस ट्राइंगल? एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, right? Base, perpendicular and hypotenuse. So when I referred the Pythagoras theorem, what did I refer? That for any sort of a right angle triangle, there is always two lines which will be perpendicular to each other. The base one will be base, the other one will be perpendicular, and this one will be hypotenuse. And the formula for finding out the hypotenuse is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Correct? This is the formula for finding out the hypotenuse का square. Now let's understand area हम कैसे निकालते हैं. यहाँ पे एरिया हम निकालेंगे अगर हमें अपना बेस पता है और अपना परपेंडिकुलर पता है. तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट. अगर ये ट्राइंगल आपका है ए सी एंड डी, राइट, ए सी एंड डी में एक स्ट्रेट लाइन हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे से ए बी एंड विच गिव्स यू अ 90 डिग्री एंगल. Correct? Now this 90 degree angle sits on the same line जहां पर आपका ये एंगल ड्रॉप हो रहा है, जहां पर आपका इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस है. Correct? Now let's understand ACD में आपका बेस क्या होगा? आपका बेस होगा C and D
एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्राइंगल का जो बेस लाइन है उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, राइट, उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं एंड वी आर एबल टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, that line can be considered as the perpendicular for that particular triangle. I will stress out again. एक एग्जिस्टिंग ट्राइंगल है आपके पास जिसका कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, आप क्या करोगे, आप उसके बेस को पहले आप एक्सटेंड करोगे। When you extend the base, you get a larger area. When you get a larger area, you drop a straight line from the top till the bottom, making a 90-degree angle. When you make a 90-degree angle, then this becomes your base CD and this becomes your perpendicular AB. Hence, your area can be defined as CD into AB का half, right? ये थ्योरम आगे जाकर के हमें बहुत काम आएगा when we are going to prove the theorem. So this is just a very important thumb rule that we have to remember for right angle triangles. Now moving on. इस चैप्टर में जो हम चीजें कवर करने वाले हैं, there are two things. First thing is similarity and the other one is congruency. Now what are those? Let's understand. प्रीवियस क्लासेस में जब हमने अपने शेप्स पढ़े थे तो हमने मल्टीपल शेप्स एंड साइजेस पढ़े थे एंड वी हैव आल्सो लर्नड दैट कौन से शेप्स की कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल स्क्वायर के आपके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट, एंड उसका एरिया क्या होता है, इफ यू हैव टू डिफाइन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर यू बेसिकली हैव टू, उसमें आपका फॉर्मूला लगता है साइड इनटू साइड। बेसिकली अगर 1 सेंटीमीटर का आपका एक स्क्वायर है तो 1 into 1 is basically 1 meter square will be your area of that particular square. Similarly, for a rectangle, length into breadth is the area of the rectangle. So if the length is 5 and the breadth is 2, so 5 into 2, 10 meter square will be your area of the rectangle, right? Similarly, हमने एक शेप पढ़ा था which is called a trapezium. पीछे के चैप्टर्स में हम पढ़ते चले आए हैं इसको, अब इस चैप्टर में हम इसको एक दूसरे एंगल से देखेंगे where we will use this trapezium to prove theorems. Like how will we prove theorems? Let's understand that. So जब हम एक ट्रेपेजियम की बात करते हैं, उस ट्रेपेजियम में आपके दो लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ए बी सी एंड डी. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट. Now, AB is parallel to CD का मतलब क्या है? AB is parallel to CD का मतलब है कि यहां से आपका, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इन लाइंस को अगर हम कहीं पे ले जाकर एक्सटेंड करें तो दिस विल मीट समवेयर, से एट O, and this can form into a triangle. So triangle ODC will have a triangle AOB and have a trapezium ABCD. Okay, so any trapezium, if you have two lines parallel to each other, जो भी लाइन आपकी इज द स्मॉलर लाइन, वहां के एक पॉइंट से अगर आप एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ऑन द पैरेलल लाइन, इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री, सॉरी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हो दैट गिव्स यू अ 90 डिग्री एंगल. सो बेसिकली आपके एक ट्रेपेजियम में आप दो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर सकते हो, विच मीन्स दैट ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल. सो एक ट्रेपेजियम में से अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाएं, सो बेसिकली यू विल गेट वन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो यू विल गेट अ रेक्टेंगल, राइट, यू विल ऑल्सो गेट अ रेक्टेंगल. सो ट्रेपेजियम को इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है. इसका यूसेज फर्दर थ्योरम्स में कैसे होगा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सो after understanding what trapeziums are, now let's understand what does the similarity and congruency of triangles mean. Similarity, जो शब्द है आपका similarity, ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें कि आपको ये पता होता है कि दो चीजें जो बहुत सिमिलर होंगी, मतलब बहुत सेम सी दिखती होंगी, वैसी किसी चीज की बात हो रही है, राइट. सेम सी दिखने वाली कौन सी चीज? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. मैंने बोला मेरे पास एक फोटोग्राफ है, राइट, एक स्क्वायर फोटोग्राफ है. अगर आप पुराने जमाने की तस्वीरों को देखा जाए तो वो पहले स्क्वायर भी आती थी, राइट. देयर इज अ ओल्ड फोटोग्राफ. नाउ दैट फोटोग्राफ इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर.
स्क्वायर। नाउ इसको मैंने एनलार्ज करवाया टू अ बिगर स्क्वायर, and now the square is 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter and 2 centimeter, right? मुझे कैसे पता कि ये दोनों स्क्वायर्स जो है वो सिमिलर है या नहीं है? लेट्स चेक द सिमिलैरिटी। साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 1:1, यहाँ की साइड्स को कंपेयर करेंगे तो 2:2, मतलब 1:1, राइट? जब भी आपके दो चीजों को कंपेयर करने पे, सेम चीजों को कंपेयर करने पे ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स एज वेल, रेशियो आपको कॉन्स्टेंटली अगर सेम मिलता रहता है, देन दैट्स कॉल्ड एज अ सिमिलर ट्राइंगल और अ सिमिलर स्क्वायर और अ सिमिलर रेक्टेंगल, राइट? मतलब एक ही चीज को अगर प्रोपोर्शनेटली एनलार्ज किया जाता है, देन दैट्स कॉल्ड अ सिमिलैरिटी इन बिटवीन द टू थिंग्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको हम ट्राइंगल्स में कैसे देखेंगे। सिमिलर वे में देखेंगे। ट्राइंगल्स में हम बोलते हैं कि अगर एक ट्राइंगल को, उसके साइड्स को कुछ इस तरीके से एनलार्ज किया जाए, जैसे कि 1, 1 and 1। सपोज कर रहे हैं कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाउ इट बिकम्स 2, 2 and 2, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टिल remains an equilateral triangle, right? And all the angles will obviously remain the same. Hence, this is a similar triangle. Now, what is a congruent triangle? A congruent triangle is basically anything that can be superimposed on each other or basically are mirror images to each other, right? mirror images का मतलब होता है, अगर मैं शीशे के सामने खड़ी हो जाऊं तो जो मेरी फोटो है, जो मेरा इमेज है, जो मेरा प्रतिबिंब उसके ऊपर आएगा, that will exactly look like me, right? It's not going to look like anybody else. Why so? Because that is giving the exact इमेज ऑफ हाउ आई लुक, राइट? तो अगर दोनों चीजों को सुपर इम्पोज किया जाए तो एक पॉइंट इन टाइम पे एक दूसरे को ऐसे कवर कर देंगे कि दूसरा दिखना बंद हो जाएगा, राइट? सो सेम इज द केस विद ट्राइंगल्स आल्सो। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, if one triangle is superimposed on the other, they are mirror images of each other and they can completely cover each other, right? So that's the difference between similarity and congruency. Now we will start to proving some of the theorems. Now what are these theorems? Theorems का मतलब होता है मैथमेटिक्स में हम कुछ assumptions लेते हैं, कुछ चीजें हमें पता होती हैं और कुछ चीजों के हम assumptions लेते हैं। मैथमेटिक्स is entirely on assumptions. Now let's assume a lot of things and let's take a already proven couple of things and then we create a theorem on the basis of that, which basically becomes instrumental in solving a lot of problems. कि इसको अगर इस तरीके से assume कर लेते हैं, so using this theorem can we prove this, and hence those are called theorems, right? किसी भी थ्योरम को प्रूव होने से पहले जो एक स्टेटमेंट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज समथिंग जहां पर हम एक रफ आइडिया को प्रेजेंट करते हैं ऑन सर्टेन फैक्ट्स, उसको डालते हैं, देन उसके बाद उसकी स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग ऑन बेसिस ऑफ अदर फैक्ट्स अवेलेबल, राइट? मैंने बोला, जैसे हमने ट्रेपीजियम की बात करी, ट्रेपीजियम में हमने एक फैक्ट्स बोला कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट? और जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हमने बोला कि दो लाइंस ऑब्वियसली एक ऐसे लाइंस पे जा रही होंगी जिसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो आगे जाके कहीं पे एक पॉइंट पे जाकर के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, राइट? नाउ फिर हमने क्या बोला कि अगर वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो 90 डिग्री होगा, राइट? यहाँ पे होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 90 डिग्री होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहली चीज कि वो एक ट्रेपीजियम हो, ठीक है? और अगर वो ट्रेपीजियम होता है, देन आपका ये फॉर्मूला, आपका ये पोस्टुलेट और से द हाइपोथेसिस विल बी ट्रू दैट द टू ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, देन ये ट्रू होगा कि आपकी दो लाइंस इफ एक्सटेंडेड विल मीट एट सर्टेन पॉइंट, राइट? देन ये ट्रू होगा that if a straight line is dropped, then it forms a 90-degree angle, right? So one thing extends to the other, extends to the other, extends to the other, right? So basically, mathematics is all about the right assumptions. One thing you know, one thing you create, and one thing you prove, and that becomes a theorem. A hypothesis turns into a theorem. Now, let's start our theorem number 6.1. Theorem number 6.1 of the chapter is basic
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ हम बोलेंगे व्हाट इज दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ जैसे कि नाम बोल रहा है बहुत बेसिक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है। सिंपल सीधी सी भाषा में पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं इस थ्योरम में कि अगर एक ट्राइंगल हम बनाएं, राइट, एक ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं विच इज कॉल्ड ए बी एंड सी, उस ट्राइंगल पे हम दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर दो पॉइंट्स बनाते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे ई और यहाँ पे बोलेंगे एफ, और उन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं सो दैट कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए, राइट। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, इफ देन इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, देन ए ई by EB is equals to AF by FC. You understand what am I saying? I am saying कि एक ट्रायंगल है, राइट, उस ट्रायंगल के दो लाइंस पे हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करे, दो पॉइंट्स ड्रॉ करे, जहां से एक स्ट्रेट लाइन को अगर ज्वाइन किया जाता है दैट बिकम्स अ पैरेलल लाइन, ठीक है, टू द अदर वन। इफ इट बिकम्स अ पैरेलल लाइन टू द अदर वन, व्हाट हैपेंस इज दैट कि इसके पैरेलल होने की वजह से ये जो दो पॉइंट्स है हम ये बोल सकते हैं कि ए ई इज टू ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, राइट। नाउ इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ की जाएं तो वो दो स्ट्रेट लाइंस ऑफ अ ट्रायंगल को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देते हैं। Done? Now we will move towards proving the theorem. Now इसके लिए I'll need the whole board and I will want you to stay together with me so that you can understand what I am trying to say. Right? ट्रेपेजियम की बात की थी हमने, ट्रेपेजियम हमने देख लिया कि हमारे ट्राइंगल में किस तरीके से आएगा। Now let's draw the triangle first. Okay. Now this is a triangle, right? Now we will name it as A, B and C. Now यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं, वन विल बी राइट, वन विल बी एन एंड वन विल बी एम, राइट। ए एन एम एक ट्राइंगल है, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया। प्रूफ क्या करना है हमें? ऑलराइट, ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको एन और एम बोलने की बजाय लेट्स डू वन थिंग। सो वी ड्रू अ ट्राइंगल एबीसी. It can be any triangle, right? It can be a scalene, isosceles, or equilateral triangle as well. Now let's proceed with marking it as E and F. दो लाइंस ऐसे, दो लाइंस, दो डॉट्स ऐसे, दोनों लाइंस पे हम ड्रॉप करेंगे, जहां पे से अगर उन दोनों डॉट्स को अगर ज्वाइन किया जाता है then they draw a parallel line. EF basically is parallel to BC, right? क्या बोला हमने? EF is parallel to BC. Now EF is parallel to BC में हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट AE by EB is equals to AF by FC. राइट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ट्रेपेजियम की बात की थी हमने, ट्रेपेजियम हमारा क्या है? EFCB इज आवर ट्रेपेजियम। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे ई और सी को और एफ और बी को, राइट। तो अब यहाँ पर हमें मिले हैं दो ट्राइंगल्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल है ई एफ सी और एक ट्राइंगल है ई एफ बी, राइट। और दोनों ही ट्राइंगल्स आपके सेम बेस के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है, which means that you will always, if you get a perpendicular to these two triangles and your base is same, so basically you will have the areas also same for these two triangles, right? Okay, now let's understand what will the area of triangle EFB
B will be, what will be the area of triangle EFC will be। दोनों चीजों को हमें फिगर आउट करना है। अब हमारे पास कोई परपेंडिकुलर अभी तक नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप करें? यहाँ पर ड्रॉप करने का हमारे पास चांस नहीं है। यहाँ ड्रॉप किया तो वो ट्राइंगल से बाहर हो जाएगा। ट्राइंगल से बाहर नहीं करना है, बल्कि एक पॉइंट से उसके बेस पर करना है। EF इज योर बेस, राइट? EF इज योर बेस। EF से अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉप करूं, कॉल्ड, सॉरी माय बैड, दिस इज N फॉर नोज, और E से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी EM, विच इज अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन AF। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर हमें यहां मिल गया और एक परपेंडिकुलर हमें यहां मिल गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड EFB की जब हम बात करेंगे तो EFB के लिए बेस कौन सा है? ये है, राइट? EFB का बेस ये है। इसमें हम परपेंडिकुलर कौन सा यूज कर सकते हैं? EN। तो इट विल बी हाफ ऑफ EF into F and N, right? F and N। Now similarly EFC की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे EFC की। EFC के लिए जो ट्राइंगल है आपका वो कौन सा है? EM। सॉरी, परपेंडिकुलर जो है वो है EM। तो बेस क्या है आपका? EF into EM, राइट? दोनों ट्राइंगल्स जो आपने ट्रेपेजियम के अंदर ड्रॉ करे थे ऑन द सेम बेस, आपको दोनों ट्राइंगल्स मिल गए हैं। अभी के लिए इनको एज इट इज यहीं पे छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऊपर का जो ट्राइंगल है आपका AEF, करेक्ट? नाउ AEF की बात करते हैं। AEF के एरिया को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द फर्स्ट विल बी, हम कंपेयर करेंगे AEF को विद द परपेंडिकुलर FN। तो FN लिया तो उसका बेस होगा AE into FN। क्यों? क्योंकि बेस के ऊपर ही परपेंडिकुलर आपका ड्रॉप करेगा, राइट? नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF is equals to half of, ओके, AE into FN। अब हम करेंगे आपका सेम ट्राइंगल AEF, तो आपका बेस हो रहा है AF into EM, राइट? ऑल राइट, अब हमें मिल गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड। EB होगा, करेक्ट? EB ट्राइंगल EFC में FC। Alright, now let's understand. So आपका एक ट्राइंगल है, right? Now this triangle is A, B and C, right? A, B and C में हमने बोला था कि आपने दो पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करे E and F, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन is parallel to the other one. Now उसको हमने दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। Now the two triangles were getting formed on the same baseline, right? तो मैंने थ्योरम एक्सप्लेन करा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल का एक परपेंडिकुलर लाइन उसके बेस के एक्सटेंडेड पोर्शन पर ड्रॉप किया जाए तो वो 90 डिग्री बनाता है। इट इज अ परपेंडिकुलर टू दैट सेम ट्राइंगल। गलती मैंने यहाँ पर क्या करी थी? वो गलती मैंने ये करी थी कि जब मैंने इसका बेस लिया तो मैंने इसका बेस EF ले लिया, जबकि परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है जिस एक्सटेंडेड लाइन पे, द बेस हैज टू बी BE। फॉर द ट्राइंगल ABF द बेस हैज टू बी BE, राइट? यही डिस्कस किया था ना हमने कि अगर एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर उसके बेस पे ड्रॉप होता है विच इज एक्सटेंडेड, राइट? विच मीन्स उसके बेस को ही जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इफ दिस इज A, B, C एंड दिस इज D, सो BC को एक्सटेंड करके जो जहां पर भी हमें 90 डिग्री मिलेगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस। BC विल बी द बेस एंड AD विल बी द परपेंडिकुलर, राइट? सो सेम थिंग, यहाँ पे एक एरर हुआ था, वो एरर मैंने अभी फिक्स किया। आई होप दिस इज क्लियर, वरना मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? नाउ व्हाट डिड वी से? पहली चीज हमने ये बोली थी कि एक ट्रेपेजियम में जब आपके एक सिंगल बेस के ऊपर दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि EFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFB इज इक्वल टू EFC, राइट? इन दोनों का एरिया इक्वल है। और अगर देखा जाए तो AEF एंड AEF का जो एरिया है वो हमने दो परपेंडिकुलर से निकाला इसलिए है ताकि हम ये देख सके कि इनका जो एरिया आ रहा है वो सेम है।
राइट? तो क्या इनके जो बेसिस हैं उनका रेशियो भी सेम है, यही चेक करने के लिए हमने निकाला है, राइट? नाउ इससे क्लियर फंडा बन सकता है. व्हाट कैन वी डू? वी कैन सी दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ divided by area of triangle EFB is equals to area of triangle AEF divided by area of triangle. One is your EFB and the other one is your EFC. Correct? What is this? Why did we do that? What did we have to prove? AE by EB. AE is the base of the triangle AEF when you have taken the perpendicular FN, right? So FN को आपने AE के बेस पे perpendicular consider किया है. तो FN और AE का जो आपका triangle है, this has to be compared with the triangle EB and F, right? तो वही आपने यहाँ पर किया comparison. सिमिलरली इस तरफ भी आपका AEF का जो आपका ट्राइंगल है, जहां पर आपका बेस है AF एंड योर परपेंडिकुलर वाज EM, तो परपेंडिकुलर वाज EM एंड दिस वन वाज AF. कहां गया ये EM और AF? उसको आप कंपेयर कर रहे हो EFC से. EFC जहां पर आपका बेस है FC एंड परपेंडिकुलर इज EM, राइट? दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये होगा कैसे. AEF ये वाला लेंगे तो half of AE into FN into EFB. EFB is half of EB into FN. Again same thing. AEF half of AF into EM divided by half of EFC. EFC becomes half of FC into EM. करेक्ट. नाउ अब हम इसमें अपना बेसिक जैसे हम डिवीजन करते हैं सिमिलर डिविजन्स करेंगे. FN gets cancelled, half gets cancelled, EM gets cancelled, right? नाउ क्या हुआ? ये हुआ कि अब जो हमारे पास बचा यहाँ पर that left is AE divided by EB equals AF divided by FC. AE divided by EB is equals to AF divided by FC, जो कि हमें प्रूव करना था. तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट किया था फ्रॉम अज्यूमिंग दैट ABC इज अ ट्राइंगल, राइट? फिर हमने अज्यूम किए थे कि दो E और F ऐसे पॉइंट्स हमने ड्रॉ करे हैं आपके AB पे और AC पे कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी फॉर्म होती है जो उस ट्राइंगल के बेस के पैरेलल है, व्हिच मींस EF इज पैरेलल टू BC, राइट? When EF is parallel to BC, हमने बोला कि यहाँ तो एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है. उस ट्रेपेजियम पे फिर हमने एक अपना फैक्ट रखा कि एक ट्रेपेजियम के बेस पे अगर दो ट्राइंगल ड्रॉ किए जाते हैं देन उनका एरिया सेम होता है. तो हमने दो अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करे. हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आपके दो ट्राइंगल्स ड्रॉ हुए, उनका एरिया हमने कंपेयर करा. ऊपर हमें एक ट्राइंगल मिल रहा था, उस ट्राइंगल के थ्रू हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे उसके बेस पे. When we drop two perpendiculars, हमें उस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से मिला. तो सिमिलरली लॉजिक ये था कि एक ट्राइंगल के दो एरिया का फॉर्मूला मिला which were supposed to be equal. ट्रेपेजियम के बेस पे दो ट्राइंगल्स जो फॉर्म होते हैं those are supposed to be equal. ये दो हाइपोथेसिस को यूज करके हमने एक थ्योरम को प्रूव किया which is called as the basic proportionality theorem, right? Okay, now let's move ahead. अब मूविंग अहेड का क्या मतलब है? मूविंग अहेड का मतलब है हम चलते हैं अपना थ्योरम नंबर 6.2 पे. नाउ व्हाट इज द थ्योरम नंबर 6.2? थ्योरम नंबर 6.2 इस वाले थ्योरम नंबर 6.1 का जस्ट ऑपोजिट है. हमेशा आपके मैथ्स में अगर आपका एक साइड ऑफ द कॉइन इज ट्रू तो आपका दूसरा साइड ऑफ द कॉइन आल्सो हैज टू बी ट्रू. ऐसा ही होता है, मतलब दैट इज द लॉजिक ऑफ any theorem to be true.
राइट। तो अभी हमने क्या बोला था कि सपोज करते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ए बी सी है, ए बी एंड सी, दो पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ किए ई और एफ, जहाँ के दो स्ट्रेट लाइंस होंगे तो ये पैरेलल होंगे। तो हमने प्रूव ये करा था कि अगर ई एफ जो है वो पैरेलल है बी और सी के, तो फिर ए ई बाय ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ बाय एफ सी, राइट। अब हम इसका उल्टा प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि भाई अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू, देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इसको प्रूव करना है, राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? हमने कहा कि ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी ऑलरेडी है, ठीक है। हम बोलते हैं कि चलो ए एफ इज नॉट पैरेलल टू बी सी, राइट। तो अगर ई एफ बी सी के पैरेलल नहीं है तो मैंने क्या करा कि एक पॉइंट ऐसा ड्रॉप करा ए सी पर, विच इज कॉल्ड एज द एफ डैश। नाउ दैट एफ डैश हम बोलते हैं कि ई एफ, लेट ई एफ डैश बी पैरेलल टू बी सी। EF dash is parallel to BC. Now अगर EF dash is parallel to BC तो क्या होगा? तो ये होगा कि AE by EB is equals to AF dash by F dash C. Correct? Okay, fair enough. अब हम क्या करते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि इसके प्रोपोर्शन सेम है तो इसका प्रोपोर्शन इसका रिवर्स भी सेम होगा, राइट। तो मतलब EB by AE is equals to F dash C by AF dash। अब हम दोनों तरफ +1 करेंगे। Okay, now what did we prove? EB plus AE. EB plus AE gives you AB. AB by AE. F dash C plus AF dash. F dash C plus AF dash gives you AC divided by AF dash. Right? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे हम इसको लेकर के आए हैं। हमें क्या बोला गया था? हमें ये बोला गया था कि ये प्रूव करो कि अगर ये दोनों प्रोपोर्शनेट हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी। मतलब अगर कोई लाइन आपके ट्रायंगल के दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है तो बेसिकली उसके जो बेस लाइंस होंगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एग्जैक्टली दैट वाज द पॉइंट। तो हमने बोला कि भाई अगर ई और एफ को ई एफ इज पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है, EF is parallel to BC proof करना है on the basis that AE is to EB and AF by FC is proportional। अगर इसके बेसिस पे प्रूव करना है तो हमने बोला कि नहीं है EF उसके पैरेलल। लेट्स कंसीडर अनदर पॉइंट F डैश, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है BC के। नाउ अगर EF डैश इज पैरेलल टू BC, सो बेसिकली बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा ये दोनों रेशियो में होगा। अगर ये दोनों रेशियो में होता है तो इसका रिवर्स भी रेशियो में होगा। सेम रेशियो में अगर हम दोनों तरफ +1 ऐड करते हैं और उसको इक्वेट करते हैं, देन वी गेट द रेशियो एज AB by AE is equals to AC by AF dash। So what are we getting? AB by AE, AB by AE, which means that this point is dividing this line into two equal halves, right? मतलब जब इसका रेशियो सेम है तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली AC बाय AF डैश, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम है, मतलब कि EF डैश इज पैरेलल टू BC। तो मतलब अगर ये थ्योरम प्रूव हो रही है तो अगर EF पे प्रूव किया जाए तो ये थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी, राइट। दिस इज योर थ्योरम नंबर 6.2। एक ही थ्योरम है विच इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको दो एंगल्स से देखा गया है, राइट। नाउ इसके बेसिस पे आपके इस चैप्टर में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, राइट। We can take the questions in the next session
or we can start the next set of theorems as well in the next session. Please let me know in the comment section below if this video was useful to understand the theorems and if you would want me to solve any further questions as well. ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल लाइव चला जाएगा. अगर ये आप वीडियो आज देख रहे हैं and if you want questions to be solved on these two basic theorems, please respond to me on the comment section so that I can take up more questions from this chapter. If not, in my next video I will proceed with the proving of similarity of triangles. So basically जब हम similarity की हमने बात कर ली है already यहाँ पर, अब similarity को prove कैसे करते हैं उसको हम पढ़ेंगे इसके next chapter में. So coming up will be 3 theorems that we will read on the similarity. ये हमें प्रूव करना होगा अगर दो ट्राइंगल्स को कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं. हाउ विल वी डू दैट? सो फर्स्ट थिंग विल बी टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे इस चीज को कर सकते हैं. फर्स्ट थ्योरम आपका होगा थ्योरम नंबर 6.4. 6.4 के अंडर में आपको ओके 6.1 6.2 सो नाउ विल बी 6.3. 6.3 होगा आपका ए 6.4 होगा एस 6.5 होगा एस. ठीक है, मैम पागल नहीं हो गई है. मैम सिर्फ इतना बता रही है कि ये थ्योरम्स है. अब ये है क्या? ए एंगल एस साइड. थर्ड इज एस मतलब साइड एंगल साइड. दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरियन से किया जा सकता है. फर्स्ट क्राइटेरियन बीइंग अगर हम ये बोल दे कि उनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, व्हिच मींस ए व्हिच मींस वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. दो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ऑफ कोर्स दोनों सिमिलर है. ठीक है, दोनों सेम ही होंगे, सेम रेशियो में होंगे. अगर हम बोलते हैं 6.4 एस मतलब उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब फिर अगेन वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होंगे. करेक्ट. नाउ 6.5 इज एस. नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है. एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है. राइट. अगर हम ये प्रूव कर देते हैं देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर अंडर द क्राइटेरियन ऑफ एस. राइट. 3 थ्योरम्स हैं, बहुत सिंपल. नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को कवर करेंगे. बट इफ एनी सॉल्यूशंस टू एनी एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. Thank you for watching today's video.